Good morning students. Here is class 9th for math subject. Students, before starting my AB, let us take pledge against COVID. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Students, now as you know, your exams will start from this month, end of this month. So बच्चे, here is the revision for your chapter number 1. Already assignments are sent to you. Here I will revise chapter number 1. Question number 1 बच्चे, so we will do here only main questions are there. Similar question you will do by yourself. Question number 1, represent 5 upon 2 and minus 5 upon 2 on the number line. So बच्चे, 5 upon 2 is a positive rational number. Then minus 5 upon 2 will be the negative rational number. As you know, positive numbers are represent on right hand side, left and on the left hand side negative numbers are there. So here we will represent 5 upon 2 and minus 5 upon 2. So बच्चे, 5 upon 2 we will just divide 5 with 2. So 2 2s are 4, 1 is remainder. So we can write 5 upon 2 is equal to 2 whole 1 upon 2. ठीक है, means this number will lie between 2 and next number is 3. So this number will lie between 2 and 3. So here we will write 0, 1, 2, 3. So denominator is 2. So we will divide this portion in 2 equal parts. This one 1, 2 parts. So this one 1, 2. This one 1, 2. So numerator is 5, so we will count 5 parts, 1 2 3 4 5. So this number will represent 5 upon 2. Here also on the left hand side minus 1, minus 2, minus 3. So we will divide these numbers into 2 equal half parts. So 1 2 3 4 5. This point A, this point B. So A and B will represent 5, minus 5 upon 2 and 5 upon 2. Similarly, you can do second part by yourself. And then fourth question is find the decimal representation of 9 upon 4. बच्चे, here you have to divide 9 with 4. 9 को आपने 4 से क्या करना है, divide करना है. ठीक है, तो here 8.0025, write this in P upon Q form. तो बच्चे 8.0025 we can write this after decimal 1 2 3 4. 4 digits are there. So we will write 1 with 4 zeros. Then we will do here cutting with the table of 5. 5 से आप क्या कर दो, इसकी cutting कर दो. ठीक है जी. So next sum, without actual division which of the following are terminating and non terminating. ये भी मैंने आपको मेथड बताया हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल 11 upon 14 है. विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी हैव टू टेल कि वेदर दिस नंबर हैज़ terminating decimal or non terminating. बच्चे, we will make the factors of denominator. Like here denominator is 14. So 14 के बच्चे बना लो 2 7 7 1. So 14 we can write 2 multiply by 7. So बच्चे, if
डिनोमिनेटर कंटेन फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। अगर डिनोमिनेटर के आप फैक्टर बना रहे हो उसमें 2 एंड 5 आ रहा है, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, लाइक हेयर 7 हैज़ कम, देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका आंसर आएगा इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चे, वन क्वेश्चन मोर। फाइंड, if question has come, find two rational and irrational number between, find two, or we can write insert a rational and irrational number between 3 and 5। so बच्चे how we will do for rational number, ठीक है। सपोज दे आर सेइंग कि राइट अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। इसके बीच में आपने एक रैशनल नंबर बताना है, एक इररेशनल नंबर बताना है। तो सपोज हेयर ए इज़ 3 एंड बी इज़ 5। तो रैशनल नंबर के लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है a+b/2। ओके, a+b/2। तो a बच्चे 3 है, 5, 8/2 4, ठीक है। इनके बीच में रैशनल नंबर है 4/1। और इररेशनल नंबर का बच्चे फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो हेयर वी कैन राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 स्क्वायर रूट, ठीक है। स्टेटमेंट कैन बी चेंज्ड, 3 और 5 की जगह पे कुछ और भी बता सकते हैं। समटाइम्स हेयर इट कैन बी स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 भी आ सकता है, ठीक है जी। स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 5, ठीक है जी। तो इसमें बच्चे a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो इररेशनल का फॉर्मूला होएगा इररेशनल नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो स्क्वायर रूट a बच्चे कितना है, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 15। तो वी कैन राइट हेयर स्क्वायर रूट ऑफ 15, हेयर इज 50, हेयर इज 5, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। ओके, देन हेयर वन क्वेश्चन इज दिस, proof that square root 2 is not a rational number, or we can say proof that square root 2 is an irrational number। तो बच्चे इसके लिए let square root 2 be a rational number, ठीक है। हमने पहले let कर लेना कि ये क्या है, rational number। then we can write this into, इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 वी कैन राइट इन a/b फॉर्म। हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b मीन्स HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दे आर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इनके बीच में a और b हैज़ नो कॉमन फैक्टर और b 0 भी नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो बच्चे देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, b मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, a मल्टीप्लाई बाय 1 इज a। फिर इसको स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट b स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बच्चे b का स्क्वायर भी हो गया, व्हेन वी विल डू द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। नाउ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका मीनिंग कि 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स a किसको डिवाइड कर रहा है, b, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को,
ठीक है, इसका मतलब 2a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, अगर डिवाइड कर रहा है तो वी कैन राइट कि हेयर a इज इक्वल टू 2, कुछ और नंबर ले लो इसके साथ, किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके वो इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, एंड दिस विल बी द क्वेश्चन। ठीक है जी, देन पुट इट हेयर 2b स्क्वायर, a की जगह पे बच्चे नाउ वी विल पुट 2k होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया बच्चे, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे इसमें ये है कि जो b है वो दोनों को ही, जैसे a 2 है b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सॉरी a को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 यहाँ पे b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इट मीन्स b को भी डिवाइड करेगा, तो मतलब दोनों में ही कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, वो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी कर रहा है, तो दोनों में क्या बच्चे हो गया, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। बट यहाँ पे हमने सपोज किया है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ओके, सो स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट विल बी an irrational number. So I think this concept is clear to you. So बच्चे, this is all about today. Thank you and have a nice day.